स्टार्ट हुआ। चलो नेक्स्ट लगो जाते हैं बेटा हम लोग गॉस लॉ। रिकॉर्ड हो रहा है ना बेटा? सर हो रहा, रिकॉर्ड हो रहा। ओके चलो नेक्स्ट हेडिंग देखो बेटा, गॉस लॉ। Gauss law is nothing but this law gives the relationship between electric field at all the points of a closed surface. Gauss law is applicable for what? It is giving you the relationship between the electric field at all the points of a closed surface and the net charge enclosed within the surface. And the net charge enclosed within the surface part of a relation. Yani Gauss law has been applicable only for your closed surfaces. Only for your closed surfaces. Now Gauss law is actually a tool to calculate the electric field. Gauss law is actually what? A tool to calculate the electric field. The calculation of the electric field becomes more simple if the charge is distributed symmetrically. यानी equally distributed होना चाहिए. जैसे मान के चलो ये कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज अगर equally distributed है on the surface इस तरह से, isn't it? Then that is called as of your distributed symmetrical distribution. ऐसे के लिए Gauss law लगाना बहुत आराम से और easy हो जाएगा basically. So what is the condition right now? So this law gives the relationship between electric field at all the points of all the closed surface and net charge enclosed within the surface. So Gauss law is what? A tool to calculate the electric field. And the calculation of the electric field becomes more simple if the charge is distributed symmetrically. Okay. Now before trying to define the Gauss law, हम लोग एक term define करते हैं called as Gaussian surface. अच्छा दिमाग लगा के सुनने की कोशिश करो. Gaussian surface क्या होता है? Gaussian surface is nothing but an hypothetical मतलब क्या? Imaginary hypothetical मतलब imaginary. In hypothetical any three dimension hypothetical मतलब any three dimension and hypothetical three-dimensional closed surface and hypothetical three-dimensional closed surface is called Gaussian surface. And hypothetical मतलब any type of your shape you can take. It should be 110% 3D. It should be 110% of your 3D, and it should be also a closed surface. It should also be a closed surface is called as of your Gaussian surface. Is called as of your Gaussian surface. देखो मान के चलो मैंने एक चार्ज दिया आपको और मैंने बोला आप उसको एनक्लोज करो, तो इसको आप ऐसे एनक्लोज भी कर सकते हो क्योंकि ये थ्री डायमेंशन है, आपके इमेजिनेशन है. आप ऐसा कोई रूल नहीं है कि सर ऐसे ही करो. तो मैं बोल रहा हूँ इस चार्ट को मुझे क्लोज करना है एक 3D डायमेंशन ड्रॉ, एक 3D डायग्राम ड्रॉ करके, तो इसको मैंने ऐसा कर दिया इन द स्पेस, तो ये क्लोज हो गया. या इस चार्ट को मैंने कोन में रख दिया. कोन इज अ 3D डायमेंशन बॉडी और नॉट? यस सर 3D डायमेंशन. यस सर. तो इसमें भी क्लोज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? So we are closing that one even in that. So charge enclosed हो गया in the 3D dimension part of relation. अब मान के चलो स्फीयर, क्या स्फीयर 3D डायमेंशन है कि नहीं है? स्फीयर 3D है कि नहीं है? 3D है. तो इसमें भी अगर चार्ज दिया तो आप स्फेरिकल स्फीयर भी बना सकते हो, तो वो भी एक गॉसियन सरफेस हो गया. इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं अगर स्फेरिकल फॉर्म में बना दिया जाए. एक क्यूब भी क्या 3 डायमेंशन है? इस चार्ज क्यूब को रख दिया तो एक क्यूब में रख दो तो ये भी 3 डायमेंशन हो गया. तो दैट इज द रीजन वी आर कॉलिंग एन हाइपोथेटिकल. हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी. 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस. ठीक है, क्लियर है सभी को डेफिनेशन गॉसियन सरफेस का? So what is a Gaussian surface? And hypothetical 3-dimensional closed surface is called as of your Gaussian surface. And hypothetical 3-dimensional closed surface is called as of your Gaussian surface. तो पॉइंट चार्ज को एनक्लोज करने के लिए मैं ऐसे रेगुलर शेप भी ले सकता हूँ. बेसिकली आई कैन टेक द शेप ऑफ योर कोन, आई कैन टेक द शेप ऑफ योर कोन, और आई कैन टेक द शेप ऑफ योर स्फीयर, और आई कैन टेक द शेप ऑफ योर क्यूब. सो यहाँ पर और एक बात भी याद रखो, दिस इज नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now we take only such type of a Gaussian surface. We take only such type of a Gaussian surface for which angle between electric field vector and area vector, or at least any one of it is remaining constant. यानी angle between E and A अगर ले रहे हो, that should always be remaining for me what? Constant. That should always be remaining for me what? Constant part. तो हम लोग को Gaussian surface कभी भी draw कर रहे हो, we will be trying to draw the Gaussian surface in such a fashion such that the angle between E vector and A vector is always constant, or at least any one of it is remaining constant. ये बात समझ में आई? ये फिर से एक बार देखो.
So we are taking only such type of Gaussian surface for which what? Angle between E and A, angle between E and A is remaining constant, or at least any one of it is remaining constant. मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ फर्दर सेक्शन, बट याद रख लो यहाँ तक कंडीशन क्लियर है सभी को. So what exactly is a Gaussian surface बेटा? Gaussian surface is nothing but an hypothetical three-dimensional closed surface is called Gaussian surface. To close the charge, to enclose the charge, I can take the spherical surface, or I can take the cone shape, or I can take your sphere, or I can take your cubical form, anything. But when you're drawing the Gaussian surface, make sure that we should draw only such type of a Gaussian surface for which angle between E and A is remaining constant, or at least any one of it is remaining for me constant. वो रूल है, ये रूल है कि आपको Gaussian surface ड्रॉ कर रहे हो तो Gaussian surface का इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया के बीच में जो एंगल रहती है ना वो एवरी टाइम कांस्टेंट होनी चाहिए, कंटिन्यूअसली चेंज नहीं करना चाहिए, कंटिन्यूअसली चेंज नहीं करना चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड एज ऑफ योर Gaussian surface. I hope you are clear about this one. किसी को डाउट है क्या देखो इसमें? तो गॉस लॉ क्या बता रहा है देखो, गॉस लॉ क्या बता रहा है? गॉस लॉ इज एक्चुअली गिविंग यू द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस and the net charge enclosed within the surface. Now Gauss law is a tool to calculate the electric field, and the calculation of electric field becomes more simple if the charge distribution is symmetrical. तो उसके अंदर हम लोग एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं Gaussian surface. Gaussian surface is a hypothetical three-dimensional closed surface is called as of your Gaussian surface. यानी एक चार्ज को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए, इनक्लोज करने के लिए जो सरफेस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं. इसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं. तो मैंने चार्ज दे दिया तो आप इस तरह से भर सकते हो, या दिस इज नथिंग बट ऑफ योर कोनिकल गॉसियन सरफेस. कोनिकल गॉसियन सरफेस ऐसा कुछ भी हो सकता है बेसिकली, ऐसा कर लेते जो. It may be in the form of a sphere, it may be form of a cube. So anything it may be. But when you are drawing the Gaussian surface, make sure that angle between electric field vector and area vector is always remaining for me constant, or at least any one of it is remaining constant. ये देखो, एक पॉइंट चार्ज मैंने क्यूब में ले लिया, एक पॉइंट चार्ज मैंने यहाँ पर क्यूब में ले लिया, एक पॉइंट चार्ज मैंने यहाँ पर क्यूब में ले लिया. मैं फिर से एक बार उसके ऊपर व्हाइट पेन से ड्रॉ करता हूँ यहाँ. ये देखो, ठीक है ना, ये पॉइंट चार्ज है. ये पॉइंट चार्ज से अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रही है, ऐसा जा रही है क्यूब में से, ऐसा जा रही है, ऐसा जा रही है. अब यहां देखो, ये जो जा रही है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना बेटा, ये बात. इसका एरिया वेक्टर देखो, ये जो साइड का क्यूब का एरिया है, एरिया भी यही डायरेक्शन में है, डीए बार. इन दोनों के बीच में एंगल कितनी है बताओ जल्दी से? 0. थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है कि नहीं सर? 0 डिग्री. तो अब देखो, और एक चार्ज अगर मैं यहां पर ले रहा हूं, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, इसका एरिया कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर. अब ये इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रही है थीटा आ गई, तो सेंटर से ये सरफेस तक जैसे आप चले गए तो एंगल क्या हो गई? थीटा इज इक्वल 0 से लेके बढ़ते हुए हम थीटा के पास जा रही है. 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कंटिन्यूसली क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो क्या एंगल बिटवीन ई एंड डी कांस्टेंट है क्या यहाँ पर? हाँ, कांस्टेंट है. कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इनिशियली 0 है, उसके बाद बढ़ रही है. तो कांस्टेंट कहां से हुआ? कांस्टेंट नहीं हुआ ना, तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है कि नहीं? यस सर. हम लोग क्या बोले थे? एंगल बिटवीन ए और डी, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल जो है ना कांस्टेंट होना. अगर स्टार्टिंग आपके पास 0 डिग्री से आई तो थ्रू आउट द सरफेस सबको 0 डिग्री से आना चाहिए. तो यहां जैसे ये सरफेस को हम लोग ने 0 डिग्री लिया, यहां पर जब जा रहा है यहाँ पर 0 डिग्री नहीं है, यहाँ पर भी 0 डिग्री नहीं है, यहाँ पर भी 0 डिग्री नहीं है, राइट नाउ यहाँ पर भी 0 डिग्री नहीं है कि नहीं? तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. तो पॉइंट चार्ज के लिए क्यूबिकल गॉसियन सरफेस हम लोग नहीं ले सकते. पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर. क्लियर है. क्या बात समझ में है? बोलो. एक पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग क्यूबिकल गॉसियन सरफेस नहीं ले सकते. वी कांट टेक द क्यूबिकल गॉसियन सरफेस. बात क्लियर है सभी को? यस सर. ठीक है ना. देखो, ये पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस तरह से, एरिया इसका इस तरह से था, इसका भी एरिया इस तरह से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आई तो इन दोनों के बीच में एंगल आ गई थीटा. तो यहाँ पर थीटा कितना था अपने पास? इनिशियली 0 था, थीटा 0 था.
उसके बाद थीटा आ गया, फिर उसके बाद और थीटा आ गया, उसके बाद और थीटा आ गया. So theta is continuously changing. Theta is continuously changing. So I can write as angle between E and dA is not constant, so we cannot take the cube as Gaussian surface for the point charge. ठीक है, बात क्लियर है? तो पॉइंट चार्ज को क्यूबिकल सरफेस क्यों, क्यूबिकल गॉसियन सरफेस क्यों नहीं ले सकते हैं? तो आइडिया आ गया ना सभी को? अगर आपको कोई पूछ रहा है पॉइंट चार्ज को मैंने क्यूब में भी डाल दिया, तो क्यूब तो हाइपोथेटिकल है और 3 डायमेंशन भी है, लेकिन फिर भी अभी बोल रहे हैं कि आप गॉसियन सरफेस क्यूबिकल में क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हम लोग ने एक रूल बनाया था कि हम लोग गॉसियन सरफेस कभी भी ड्रॉ करेंगे ऐसा ड्रॉ करेंगे इन जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल रहेगी ना, दैट शुड बी योर कांस्टेंट. तो इसके अंदर तो कांस्टेंट नहीं है, तो दैट इज द रीजन वी आर नॉट टेकिंग द क्यूबिकल गॉसियन सरफेस. लेकिन इट इज ओनली इन द इंटर. अगर आप बाईपीसी स्टूडेंट्स ना हो के अगर कोई एमपीसी स्टूडेंट्स है इसके अंदर, तो आप when you join your IITs, there your IIT professors will be doing the same problem by taking the cubical body and they will be doing the derivation. जहां पर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता, लेकिन अपने को इंटरमीडिएट के अंदर तक वही गॉसियन सरफेस लेना है जिसके बीच में एंगल बिटवीन E and D is remaining constant. तो बस यहाँ पर याद रख लो, as the angle between electric field vector and area vector is not constant, so we cannot take the cube as of your Gaussian surface. बात क्लियर है सभी को? बात क्लियर है सभी को? Yes, sir. कुछ डाउट है? Yes, sir. ठीक है ना? चलो ये पूरा तो फालतू है. चलो अब ये देखो, पॉइंट चार्ज को मैंने क्यूबिकल सरफेस लिया. अब यहाँ पर भी पता लगाना क्या पॉइंट चार्ज को हम लोग कोन एज अ गॉसियन सरफेस ले सकते हैं या नहीं ले सकते. अब यहाँ पर देखो, ये मैंने चार्ज लिया है यहाँ पर सेंटर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज, ये चार्ज क्यू से जो चार्ज निकलेगा ऐसा निकलेगा, ऐसा ऊपर भी जाएगा, ऐसा भी जाएगा, फिर ऐसा भी जाएगा. अब ये देखो जो एरिया वेक्टर यहाँ पर मैंने लिया हुआ ना, इसका एरिया वेक्टर नीचे है, एंगल दोनों के बीच में कितनी है? 0. तो इसका भी एरिया वेक्टर कभी भी नीचे ही होगा, इसका भी एरिया वेक्टर नीचे ही होगा, इसका भी एरिया वेक्टर नीचे ही होगा. एरिया वेक्टर एवरी टाइम नीचे ही होगा, कहीं पर भी ले लो इसका एरिया वेक्टर नीचे ही होगा. यहाँ पर जब सेंटर पे था दोनों के बीच में एंगल कितनी थी? थीटा 0 डिग्री थी. तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आया, एरिया वेक्टर के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितनी आ गई? थीटा आ गई. आ गई कि नहीं आई? बात समझ में आई? ये कौन था ना बेटा, इस कोन के अंदर हम लोग ने चार्ज रख दिए. ये चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही गया, उसके बाद ऐसा ही गया, उसके बाद ऐसा ही गया. अगर मैं इसको एरिया ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका एरिया इस तरह से होगा, इसका एरिया इस तरह से होगा, तो इसका एरिया ऐसा ही होगा ना. यहाँ पर ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है. यहाँ पर देखो एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में. थीटा कितना? 0 डिग्री से. तो थीटा क्या हो रही है? कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, सेम नहीं है ना. ठीक है ना. ये पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर से ना नीचे जा रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई बार और डी ए बार दोनों के बीच में एंगल कितनी है? सेम 90 डिग्री से, 0 डिग्री से. अब इसके बेर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रही है, ये एरिया वेक्टर डाउनवर्ड है, दोनों के बीच में एंगल कितनी? थीटा. फिर यहाँ पर थीटा इंक्रीज होते जा रही है बेसिकली. सो एज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, सो वी कैन नॉट टेक द गॉसियन सरफेस फॉर द कोन. बात क्लियर है? बात क्लियर है? समझ में आए? Yes, तो sir. पॉइंट चार्ज को कोन भी गॉसियन सरफेस नहीं ले सकते. Even though it is a 3-dimensional closed surface, we cannot take it as of your what do you call that one, cone as of your Gaussian surface. Clear है सभी को? अब उसके बाद ये पॉइंट चार्ज मैं अभी स्पेरिकल गॉसियन सरफेस बना रहा हूं. स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस. देखो ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये एंगल पे, फिर ऊपर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ. अब उसका एरिया वेक्टर लो. अगर ये एरिया वेक्टर ले रहा हूं और ये ले रहा हूं, इन दोनों के बीच में एंगल कितनी हो गई बेटा? 0. दोनों सेम डायरेक्शन में ना. अब ये देखो इसका एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितनी आ गई?
0 0 डिग्रीज। degrees. यहाँ पर ऊपर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, एरिया वेक्टर भी ऊपर है राइट नाउ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 0। 0 इलेक्ट्रिक फील्ड ए degree. बार ए बार, तो यहाँ पर हर वक्त जगह कहीं पर भी देखो एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना है 0 0. degrees. So angle between electric field vector and dA vector is constant at all the points. So for a point charge, we can take the spherical surface as Gaussian surface. बात क्लियर है सभी को? Yes sir, clear है. आ गया समझ में Gaussian surface ड्रॉ करना? एक पॉइंट चार्ज को अगर कोई पूछे, अरे भाई ये पॉइंट चार्ज को मैं क्यूब Gaussian surface क्यों नहीं ले सकता, तो आपका आंसर क्या होगा? एंगल बिटवीन ई बार एंड ए बार वेक्टर जो है ना कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्यूब नहीं ले सकते। पॉइंट चार्ज के लिए कोनिकल सरफेस गॉसियन सरफेस क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज द एंगल बिटवीन ई बार एंड ए बार वेक्टर इज अगेन नॉट कांस्टेंट, दैट इज द रीजन वी कैन नॉट टेक दैट वन एज द प्योर कोनिकल सरफेस एज द गॉसियन पार्ट। नाउ पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कौन से टर्म में होगा? स्फेरिकल पार्ट में होगा, क्योंकि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज ऑलवेज फॉर मी constant. So angle between electric field vector, area vector is constant at all the points. So for a point charge, we can take the spherical surface as Gaussian surface. इस पार्ट तक किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सोच समझ के बोलो। क्लियर है सभी को यहाँ तक? करिए जी सर। क्लियर है? फिर से एक बार बताओ। थोड़ा लास्ट में एक टाइम बतलाइए। ओके वेरी गुड। और कुछ? ये बात आपको समझ में आया कि यहाँ पर पॉइंट चार्ज को मैंने क्यों गॉसियन सरफेस नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर एंगल बिटवीन देम क्या है? 0 डिग्रीज नहीं है। हाँ ठीक है ना? अब कोन में भी वही कंडीशन हो रहा है, कोन में भी एंगल बिटवीन देम 0 डिग्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन स्पेरिकल सरफेस में देखो, स्पेरिकल सरफेस में यहाँ मान के देखो, अगर मैं स्पेरिकल सरफेस ऐसा ड्रॉ करूं बेटा, तो यहाँ पर मैंने एक चार्ज ले लिया क्यू, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है बेसिकली, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जाएगी? तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा भी जा सकती है? तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे भी जा सकती है, ऐसा भी जा सकती है? अब इस स्फीयर का मान के चलो आप एरिया ले लो, इसका एरिया यहाँ पर है, छोटा सा एरिया ले लिया मैंने स्फीयर का, इसका एरिया नॉर्मली आउटवर्ड होगा दोनों के बीच में, ये हो गया एरिया वेक्टर ए बार और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई बार, दोनों के बीच में एंगल कितनी है? 0। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बार, इसका एरिया वेक्टर देखो बेटा, इसका एरिया वेक्टर कभी भी आउटवर्ड होगा, ये हो गया डी ए, इन दोनों के बीच में एंगल कितनी है? 0। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी इसका एरिया कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, इजंट इट? तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में एंगल कितनी है? 0। यहाँ पर भी देखो, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, डी ए वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? ई बार, इन दोनों के बीच में भी एंगल कितनी है? थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग का वही कंडीशन था ना, हम लोग को गॉसियन सरफेस क्या बोल रहे थे? देखो, we take only such type of Gaussian surface for which angle between E and DA is what? Constant. ठीक है ना? तो पहले दो केसेस के लिए कांस्टेंट नहीं था, लेकिन लास्ट केस के लिए क्या हो गया? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई अपने पास? 0 डिग्रीज हो गई। दैट इज द रीजन फॉर ए पॉइंट चार्ज वी आर टेकिंग द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। क्लियर है सभी को? क्लियर है बेटा अभी? यस सर। चलो ना, चलो, according to this law, the total electric flux through any closed surface is equals to what? Net charge enclosed surface divided by epsilon. Flux का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको था, line integral of E bar into dA must be equal to charge enclosed by epsilon. यही तो पढ़े थे ना हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला। Flux is equals to line integral of closed surface. ये जो सिंबल है ना 0 का, this is for your closed integral बोलते हैं इसको, यानी closed surface के लिए एप्लीकेबल है, closed integral बोलते हैं अगर वैसा आ गया तो। So flux is equals to line integral of your E bar into your D bar, E bar into your DA bar, that is equals to charge enclosed by epsilon naught, that is equals to charge enclosed by your epsilon naught। ये क्लियर है सभी को? फ्लक्स का फॉर्मूला स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं मैं, फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट? E bar into DA bar and that is equals to charge enclosed by epsilon naught। So QIN is nothing but what? Net charge enclosed inside the closed surface. E is the electric field due to all the charges present in the space, that is inside and outside the closed surface। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, it will be because of all the charges, अंदर और बाहर, लेकिन चार्ज जो है ना वही चार्ज लेंगे जो अंदर है। मान के चलो एक कंडक्टर, इसमें मेरे पास Q1 है, Q2 है
फिर बाहर Q3 है, Q4 है, फिर Q5 है, फिर अंदर Q6 है, फिर बाहर Q7 है, फिर Q8 है। तो Q इनसाइड क्या क्या लोगे आप? Q1 इस कंडक्टर के अंदर जो जो चार्जेस है उसको ले लो। Q1 हो गया, प्लस Q2 भी अंदर ही है, Q6 अंदर है, Q8 है, बाकी के पूरे बाहर। तो चार्ज इनसाइड क्या लिखोगे आप? Q1 प्लस Q2 प्लस Q6 प्लस Q8। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? इसके अंदर जो फॉर्मूला लिख रहे हो ना, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वही चार्ज लोगे जो कंडक्टर के अंदर है, बाहर वाले चार्जेस आप नहीं लोगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, कभी कभी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ओनली चार्जेस इनर के वजह से कि आउटर वे की वजह से? बोथ इनर एंड आउटर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होता है। लेकिन चार्जेस जो लेंगे ना, वो वही चार्ज लेंगे जो बाहर है, क्योंकि इस चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आके इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगी। इसका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये भी आके इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगी। इसका भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ये भी आके इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, ये भी आके फोर्स एक्सर्ट करेगी। यानी इस कंडक्टर के ऊपर ये पूरे चार्जेस और बाहर के भी जितने चार्जेस रहेंगे, that will be affecting the electric field on this body. So electric field is because of all the charges, whereas the net charges is because of only the charges which have been enclosed. ये पॉइंट क्लियर है सभी को? एक बार ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके चार्जेस की वजह से? अंदर वाले के बाहर वाले, बहुत अंदर एंड बाहर वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट होती है। अरे भाई क्यों कर लिया? क्लियर है? परिया क्लियर है सर? पक्का? जी हाँ। चलो, ई नेट किसके वजह से होगा? देखो मैंने क्या लिखा, Q1 के वजह से होगा, Q2 के वजह से होगा, Q3 के वजह से होगा, Q4 के वजह से होगा, Q5, 6, 7, 8। That means electric field is due to all the charges inside and outside. Clear है? चलो, very good. चलो, अब थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो अबाउट द गॉस लॉ। क्या क्या बोल सकते हैं? The closed surface in the Gauss law is imaginary, यानी ये एग्जिस्ट नहीं होता, ये सिर्फ हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। जो भी क्लोज सरफेस को हम लोग गॉस लॉ में इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस बोलेंगे। पॉइंट क्लियर है सभी को? The closed surface in the Gauss law is imaginary and hypothetical, which is known as Gaussian surface. Second point, Gauss law and Coulomb's law are equivalent, hence Gauss law can be proved with the help of Coulomb's law. Gauss law और Coulomb's law दोनों भी सेम ही रिलेशन, और we can prove the Gauss law with the help of your Coulomb's law. So Gauss law is a different way to relate the electric charge and electric field. ये दूसरा पॉइंट अपने को याद रखना है। थर्ड पॉइंट देखो, in case of the symmetrical charge distribution, Gauss law is very useful in calculating the electric field. We choose then the Gaussian surface, either spherical लेंगे या cylindrical Gaussian surface लेंगे। So surface हम लोग कभी भी ले रहे हैं तो कैसा टाइप ऑफ सरफेस ले रहे हैं बेटा? Gaussian surface में हम लोग कभी spherical Gaussian surface लेंगे या we will be taking the cylindrical Gaussian surface in such a way that angle between E bar is either parallel or perpendicular to your various forces. So if E bar is perpendicular and has the same magnitude, then क्या हो जाएगा बताओ? उसका फ्लक्स जीरो। अगर एंगल बिटवीन देम जीरो है तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो Q by एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सो E into A is equals to Q by एप्सिलॉन नॉट। अगर थीटा 90 डिग्री से cos 90 जीरो हो जाएगा तो पूरा टर्म अपने को जीरो हो जाएगा। दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर। फोर्थ पॉइंट देखो, Gauss law is valid for any closed surface and for any distribution of charge, यानी कोई भी क्लोज सरफेस जो 3D डायमेंशन होगा उसके लिए Gauss law applicable होगा। If charge distribution is given and symmetrical, we can find the electric field, or if we know the field, charge distribution can be determined, vice versa. अगर अपने पास चार्ज है तो we can find the electric field, अगर electric field है तो we can find the charge. So Gauss law is valid for what type of a body बेटा? For any closed surface के लिए ये applicable है, and for any distribution of the charge के लिए भी ये applicable है। क्लियर है सभी को? ये 4-5 पॉइंट्स अपने को याद रखना है बेसिकली। फिर से एक बार देख लो जल्दी जल्दी से, what are the important points to do, to remember about the Gauss law to do the numericals. First वाला, the closed surface is a Gauss law and is imaginary, known as of your Gaussian surface. Okay. Second one, Gauss law and Coulomb's law are equivalent, दोनों one and the same है, but Gauss law can be proved with the help of a Coulomb's law, that वो हम लोग further classes में करेंगे। Okay, and Gauss law is just a different way to find the relation between the electric field and the electric charges. Now in case of symmetrical charge distribution, यानी जो symmetrically distributed है, Gauss law is very helpful in calculating the electric field, वो हम लोग further classes में करेंगे कैसा हो रहा। So we have been chosen the Gaussian surface to be either spherical or cylindrical। इस problems में करने के लिए 90% times अगर हम लोग spherical Gaussian surface लेते या cylindrical Gaussian surface लेते to calculate the electric field part of a relation।
ठीक है ना, दैट इज द थर्ड पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर। फोर्थ पॉइंट देखो, Gauss law is valid for any closed surface and for any distribution of the charge. If charge distribution is given and is symmetrical, we can find the electric field. If we know the electric field, charge distribution can be determined. vice versa का condition है basically. अब applications देखो Gauss law के, applications of your Gauss law. Now to determine the electric field by the Gauss law, beta, we'll be drawing what? Gaussian surface. Now what is a Gaussian surface? I told you, an hypothetical three-dimensional closed surface is called as an Gaussian surface. To determine, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है तो मैं गॉस लॉ का फॉर्मूला यूज करूंगा। गॉस लॉ के फॉर्मूला यूज करने से पहले मुझे क्या करना होगा? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करना? इधर इट मे बी अ स्फीयरिकल सरफेस हो सकता है या सिलेंड्रिकल हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन in such a manner that electric field is perpendicular to the each point of the surface and its magnitude is same at every point, यानी angle between E and D remains to be constant मान के चलो। So electric field into surface area must be equal to your charge enclosed divided by epsilon naught, वही फॉर्मूला E into A is equals to charge enclosed by epsilon naught, ठीक है ना। पहला एप्लीकेशन देखते हैं, तो electric field due to the point charge by Gauss law, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज ले लिया मैंने, पॉइंट क्यू, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स पूरे ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, एंगल बिटवीन ई एंड डी कितना हो गया? 0। ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ई इंटू एरिया ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड द डिस्टेंस ऑफ आर। सो ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस so that the q is at the center of sphere. So E into area is equals to q by epsilon naught, क्योंकि थीटा कितना हो गया? 0। cos 0 is nothing but how much for me? 1 cos 0 degrees is equals to 1. So area of the spherical surface कितना हो जाएगा? Area is equals to 4 pi into your r square, that is equals to charge enclosed capital Q है by epsilon naught. E बाहर निकालो तो 4 pi epsilon naught इधर आ गया, 1 by 4 pi epsilon naught into Q by r square। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला नहीं निकला? यही इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी निकाला था, E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by r square भी। यहाँ पर हम लोग गॉस लॉ लेके भी निकाल रहे हैं, तो आप बहुत इजी मेथड है और बहुत आराम से निकल रहा है। यहाँ पर E का वैल्यू क्या है? बिकॉज ऑफ द पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया वो कितना है? 1 by 4 pi epsilon naught into Q by r square, ठीक है। फिर से एक बार देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसमें कोई डाउट रहेगा बोलो? पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। ये कैसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं मैंने? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। यस सर। पहला एप्लीकेशन, तो फॉर्मूला क्या यूज करना? E into area must be equal to enclosed charge by epsilon। और एक देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक यहाँ पर लीनियर चार्ज है, ऐसा मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ऐसा एक चार्ज है, इसके ऊपर पूरा चार्ज ऐसा रखा हुआ है। लीनियर बॉडी है तो कैसा चार्ज रहेगा इस पे? कभी भी लैम्डा। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, 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 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा, इसका फिर इस डायरेक्शन में जा रहा। तो अगर मैं इस पूरे पॉइंट्स को एक पॉइंट्स डाल के अगर मैं अटैच कर लूं, सो विल बी गेटिंग व्हाट टाइप ऑफ योर गॉसियन सरफेस? देखो, विल बी गेटिंग द सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, यानी फॉर लीनियर ऑब्जेक्ट्स के लिए, वी आर गेटिंग द सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इज द डायग्राम क्लियर फॉर एवरीवन? यहाँ पर देखो, आई हैव टेकन ए रॉड, इसके ऊपर एक चार्ज है, दैट इज नथिंग बट सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, मैंने रेड व्हाइट लाइट से व्हाइट पेन से लिखा हुआ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बार ई बार ई बार ई बार ई बार। तो इसको मैंने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लिया। ये मेरा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, ये पूरा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। यहाँ पर देखो, इसका एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर ए डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ए डायरेक्शन, तो दोनों के बीच में एंगल 0। यहाँ पर भी उतना ही ना बेटा, एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में डी ए बार और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन ई बार, दोनों के बीच में एंगल कितनी है? 0। यहाँ पर भी देखो, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, थीटा वैल्यू कितना है? 0 डिग्रीज। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? 0। तो सभी जगह यहाँ पर एंगल कितनी आ रही है? 0। एक कर्व्ड सरफेस पे 0, लेकिन ये सर्कुलर सरफेस पे देखो, एरिया ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, क्योंकि चार्ज इसी पे ही है ना, चार्ज इस रॉड पे ही है, तो इस रॉड की वजह से चार्ज कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में ही जा रहा। यहाँ पर एरिया वेक्टर इसका कौन सी डायरेक्शन में? ऊपर है, दोनों के बीच में एंगल कितनी होगी? 90। तो फ्लक्स बिकॉज ऑफ द सीलिंग कितना हो जाएगा? 0। बेस का पार्ट देखो, सिलेंडर का एरिया वेक्टर नीचे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट चार्ज कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है।
तो इन दोनों के बीच में एंगल कितनी आ रही 90 डिग्री, तो बेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, फ्लक्स कितना हो गया 0। तो यहाँ पर देखो consider a long wire having a linear charge density lambda on a plane circular face is tangential and hence no flux. So flux to the base is 0, flux through the ceiling is also 0. On a curved surface, E is perpendicular and has the same magnitude. So E into A is equal to charge enclosed by epsilon naught. So area of the cylinder you know already formula 2 pi r into your L, that is equals to charge enclosed मतलब linear charge density का formula lambda is equals to Q by L. So Q is equals to how much, or me Q is equals to lambda into L. तो वही वैल्यू लेके आके मैंने यहाँ पर डाल लिया. So ये L और ये L चले गया. So electric field is equals to lambda by 2 pi epsilon naught into R. ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू लीनियर चार्ज का फॉर्मूला. फॉर एनी लीनियर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, E is equals to lambda by 2 pi epsilon naught into R. इसको मैंने 2 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया. डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय योर 2, तो कितना हो जाएगा 2 into 2, ये हो गया 4, क्योंकि 1/4 पे epsilon naught की वैल्यू मुझे मालूम है, तो ऊपर वैल्यू हो गई 2 lambda by R. तो दिस इज इजी फॉर द कैलकुलेशन. 1/2 पे epsilon naught कैलकुलेशन निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो 1/4 पे epsilon naught आ गया. तो वी नो द वैल्यू ऑफ 1/4 पे epsilon naught 9 into 10 to the power of 9 and multiply with the given quantities, that will give me the answer for the electric field. फिर से एक बार देख लो इसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने आ रहा नहीं आ रहा, एक बार देख लो. नहीं आ रहा तो फिर एक बार मैं बता दूं. लीनियर चार्ज को गॉसियन सरफेस कोएफिशिएंट में आता बेटा, सिलिंड्रिकल शेप में आता. तो कितने सरफेसेस है सिलेंडर को, एक तो कर्व सरफेस है, ऊपर का एक सर्कुलर फेस है, नीचे का एक सर्कुलर फेस है. ऊपर और नीचे के बीच से फ्लक्स कितना हो गया 0, बिकॉज़ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितनी है 90 डिग्री. पूरा कर्व सरफेस जो होता है जैसे बैरल का शेप होता है ना, तो पूरे बैरल के शेप के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रही है, उसका एरिया भी बाहर आ रहा, सभी के बीच में एंगल 0 डिग्री होती. तो फ्लक्स ओनली बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ही होता है, बट अबव और बिलो की वजह से फ्लक्स 0. क्लियर है सभी को? Yes, sir. फिर एक बार बताऊं क्या? फिर एक बार बताऊं क्या? अरे बोलो बाबा, कुछ तो भी. समझ गया सर. पक्का? Yes, sir. समझ गया. यस सर, समझ में आया. ओके चलो. परिया समझ में आया? आ गया नहीं आया? सर, पक्का? आ गया जी. मैं आप ही के लिए इंतजार कर रहा हूँ. 2 से ज्यादा बार पूछा मतलब ये आपके लिए. ये नेक्स्ट टाइम से समझ लेना क्या बोल रहा हूँ. SR अच्छा. बोल देना, नहीं तो पहली बार में. ठीक है, समझ में नहीं आया तो फिर नहीं आया सर बोल के एक बार बोल दो, मैं आराम से समझा देता हूँ. प्रॉब्लम कुछ भी नहीं. ठीक है बेटा? जी क्लियर? सर. चलो ये हो गया मेरा. अब यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है. 2 और लैम्डा भी कांस्टेंट है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो कैसा ग्राफ आ रहा, E is inversely proportional to R. So this one is what for me, a rectangular hyperbola. जैसे बॉयल्स लॉ में ड्रॉ करते हो आप लोग, है ना. So rectangular hyperbola. So electric field का फॉर्मूला क्या है for the linear charge density? E is equal to lambda by 2 pi epsilon naught into R part. हो गया. अब ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेन शीट ऑफ द चार्ज. अब इसको जरा समझना इंपॉर्टेंट है और जरा ध्यान लगा के समझने की कोशिश करो. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या, प्लेन शीट, यानी एक पेपर. मान के चलो एक पेपर ले लो आप लोग. बेसिकली अगर ले रहा हूं मैं, बेसिकली एक मिनट ले रहा हूं, मैं अपना वीडियो ऑन करता हूं, आप जरा वीडियोस में देख लो. ठीक है, स्क्रीन शेयर में वीडियो नहीं दिखता शायद, दिख रहा है? ओके, नहीं दिख रहा. नहीं दिखता नहीं सर. दिख रहा. अभी दिख रहा? ये मान के चलो शीट है बेटा, एक पेपर शीट है. जो टिश्यू पेपर मैंने लिया हुआ है ना, एक पेपर है मान के चलो.
इसको मैं पूरा इस तरह से मोड़ ले रहा हूँ। अब वो आपके सिर्फ हवा से फिर रहा है इसलिए मैं थोड़ा मोटा कर रहा हूँ, बट मान के चलो पूरा एक पेपर कंडीशन में। 1 मिनट, ये हो गया पेपर। पीछे लाइट्स आ रही है। ये देखो एक शीट है, समझ में आ रहा? इस शीट को मैं ऐसा रखा हुआ, जी सर। के ऊपर चार्जेस भी ड्रॉ कर देता हूँ। देखो इस पे चार्ज दिख रहा है प्लस साइन, इस पे भी चार्ज दिख रहा है प्लस साइन। यस सर। अब इसको अगर मैं ऐसा पकड़ के रखूं शीट को, अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वहां पर चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जाएगी। यहाँ चार्ज है ना बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगी ना, ऐसा जा रही है, इसलिए हो गया ऐसा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर भी चार्ज है तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यानी इस शीट के लिए, Yes, sir. शीट के लिए मान के चलो शीट है, या मान के चलो एक स्लेट है। जैसे आप लोग बचपन में स्लेट लिखते थे ना, दो साइड भी हम लोग लिखते हैं बेसिकली। एक पेपर फाड़ के ले लो बेसिकली, तो एक साइड का पेपर है, एक साइड का पेपर है। एक साइड पेपर पे पूरा चार्ज दे दिया और एक साइड के पेपर पे मैंने पूरा चार्ज दे दिया, तो इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इस डायरेक्शन में जा रही है, इस साइड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है ना? शीट समझ में आई सभी को? शीट समझ में आई? आ गई सर। चलो अब इसके अंदर हम लोग जो गॉसियन सरफेस लेंगे ना, वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। वो कैसे लेंगे सिलेंडर? हम लोग सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे बेसिकली। मान के चलो इस तरह से होता है बेसिकली कुछ। अगर ये शीट ऐसा है तो शीट ऐसा हो गया, इसके अंदर जो सरफेस आ रहा ये सिलेंड्रिकल सरफेस ऐसा, तो इसका गॉसियन सरफेस कौन से शेप में है? अभी सिलेंड्रिकल सरफेस। ये पूरा कर्व सरफेस है, ये पूरे कर्व सरफेस की वजह से एरिया कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं? ये जो शीट का एरिया है कहां पर है बताओ, कोई बता सकता है कि एरिया? इसका एरिया ए डायरेक्शन में और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ए डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितनी है? 0। और यहाँ पर भी उतना ही बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से इस डायरेक्शन में, इसका भी एरिया, पेन का भी एरिया डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितनी हो गई? 0। ये येलो पार्ट के वजह से, येलो पार्ट का एरिया कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में। ये पॉजिटिव चार्ज भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितनी हो गई? 0। ये जो ग्लास टाइप ऑफ आपको ग्लास दिख रहा है बेसिकली पेन का, इसका जो कर्व सरफेस एरिया कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ पर का पार्ट को ऊपर रहेगा, ये नीचे का पार्ट का एरिया नीचे रहेगा, और मेरे तरफ का पार्ट का मेरे तरफ रहेगा, और स्क्रीन की तरफ का जो एरिया रहेगा स्क्रीन की तरफ रहेगा। यानी सिलेंडर के ऊपर अगर मुझे एक लकड़ी रखना है ऐसा, तो पूरा एक सर्कुलर शेप में बनेगा मुझे। ठीक है ना? ये जो ग्लास पार्ट ऑफ द पेन है ना बेटा, इसका एरिया कहां पर जा रहा है? देखो एरिया कौन से डायरेक्शन में प्रोजेक्ट हो रहा। अगर मैं ऊपर ठहर के देख रहा हूं तो ऊपर वाला पार्ट का एरिया ऊपर है, नीचे वाला पार्ट का एरिया नीचे है, ये वाला पार्ट मेरे पास है, ये वाला पार्ट आपके तरफ है। क्लियर है सभी को? यस सर। पता आया? समझ में आया? फिर से एक बार देखो, ये मेरी शीट है बेटा, शीट के ऊपर एक चार्ज है, ये पूरा चार्ज है, ये पूरा मेरे पास चार्ज है। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ रही है, यहाँ पर पीछे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मेरे पास आ रही है बेसिकली। अगर मैं इसको ऐसा रखूं वर्टिकल कंडीशन में, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा ऐसा जा रही है, और यहाँ पर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा ऐसा जा रही है। तो इसके लिए अगर मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है तो मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा। तो एक बार देख लो, फिर से मैं स्क्रीन स्क्वेयर कर रहा हूँ बेसिकली, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखो, समझ में आया? अब ये शीट है, इसके ऊपर पूरा चार्ज है, तो पूरा चार्ज पूरे सरफेस पे है, तो हम लोग यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस के ऊपर अगर चार्ज है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे रिप्रेजेंट होता है? सिग्मा से। अगर रॉड या वायर के ऊपर चार्ज है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर। अगर पूरे सरफेस पे चार्ज है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है सभी को?
शेयर हो रहा है स्क्रीन? नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। ओके, एक मिनट, अभी हो रहा है ना? अब हो रहा। अभी हो- हाँ, अब ये देखो, ये पूरा जो है ना, ये पूरे के ऊपर चार्ज है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, and that is represented by what? Sigma. So sigma is what? Charge by area. टू डायमेंशंस बॉडी, ऑल टू डायमेंशंस के बॉडी के ऊपर जो हम लोग चार्ज डिफाइन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। बात समझ में आई सभी को? तो ये चार्ज जो है ना, सामने भी है पीछे भी है, जैसा मैंने अभी आप लोग को बताया। तो इसके अंदर हम लोग एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले रहे हैं। ये वाला देखो, इसका एरिया जो है, जब इसका एरिया कौन सी डायरेक्शन में? ऊपर के डायरेक्शन में, डीए बार वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच में एंगल कितनी है बेटा? 90। तो फ्लक्स कितना होगा इसके वजह से? फ्लक्स कितना हुआ बेटा? फ्लक्स इज इक्वल्स टू EA इनटू योर cos ऑफ योर 90। cos 90 कितना? 0। तो फ्लक्स कितना हुआ? फ्लक्स इज 0। 0। नीचे वाले का देखो, सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, इसका एरिया कौन से डायरेक्शन में जाएगा? नीचे के डायरेक्शन में जाएगा, DA बार। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो इस तरह से जा रही है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच में एंगल कितनी आ गई? 90 डिग्री। 90। इसके वजह से Zero. फ्लक्स कितना हो गया? 0। अब ये कर्व सरफेस पे ऐसे देखो, बिकॉज ऑफ दिस कर्व सरफेस एरिया भी ए डायरेक्शन में है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो भी ए डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में एंगल कितनी है? 0 डिग्री। क्लियर है? क्या हुआ? हम लोग वही चार्ज लेंगे जो चार्ज एनक्लोज है, बाकी का चार्ज से हम लोग को मतलब नहीं है। We'll try to take only charge which is been enclosed in this Gaussian surface. This is what type of a Gaussian surface? A cylindrical Gaussian surface. ठीक है? यहां पर भी देखो, area of this one is in this direction, electric field because of this one is also in same direction, angle between them is 0. So flux is equal to how much for me? E into A. Flux even for this one is equal to how much for me? E into A. बात समझ में आई इस पार्ट के लिए? समझ में आया? क्या हुआ? यस सर। नहीं आया? नहीं रिहा बोलिए। आ गया। नहीं आया? जबरदस्त बोल रही बच्ची। पक्का पक्का? फिर से एक बार बोलो। आ देखो गया बेटा, सर। ये जो है ना, ये मेरा एक प्लेट है। ये प्लेट के ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना? तो इसको मैंने, इसके अंदर मैंने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, सिलेंड्रिकल। अभी आप पूछोगे सर आप सिलेंड्रिकल ही क्यों लिया, स्फेरिकल भी ले सकते हैं ना? हाँ ले सकता हूँ, लेकिन आप ये देखो कि स्फेरिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में की वेक्टर और ये एरिया के बीच में की वेक्टर कांस्टेंट नहीं रही थी, इसीलिए हम लोग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस नहीं ले सकते। वो आप लोग एज एन होमवर्क लेके ट्राई करो, शीट को ऐसे ड्रॉ करो और एक स्फीयर बना के देखो, और देखो कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर कॉमन आ रहा है क्या? आ रहा है तो मुझे बताओ, नहीं भी आ रहा है तो मुझे लेट मी नो कि नहीं आ रहा सर, इसलिए हम लोग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस नहीं ले सकते हैं, बल्कि बोलो ओके चलो। अब हम लोग इस शीट के लिए कौन सा गॉसियन सरफेस लिए हैं? सिलेंड्रिकल। अब इसका जो ये यहां से यहां तक की लंबाई जो है ना, ये ड्रम जैसे शेप में होता, तो इसका एरिया कौन सी डायरेक्शन में रहता? ऊपर के डायरेक्शन में होता। जैसा अभी आप लोग पेन पकड़े हो, जो पार्ट पे आप पेन पकड़े हो वो सर्कुलर पार्ट है, तो उसका एरिया कहां पर है बेटा? बाहर के साइड है कि अंदर के साइड है? बताओ। बाहर के साइड है कि अंदर की साइड है? अगर आप पेन पकड़े हो हाथ में, तो पेन का जो पार्ट जो पकड़े हैं आप लोग, क्या वो बाहर है अंदर है? बाहर। बाहर ही है ना, क्योंकि अंदर क्या है? रिफिल है। अब उसको तो नहीं पकड़ रहे ना, ऊपर आउटर पार्ट जो सिलेंड्रिकल शेप में है उसको पकड़ रहे हो ना, तो उसका सरफेस एरिया कैसे ड्रॉ करोगे आप? बाहर के डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, और एरिया पॉजिटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितने हो गए? 90 डिग्री। तो ये पूरे कर्व सरफेस के वजह से फ्लक्स जो है ना 0 हो गया। तो फ्लक्स बचा सिर्फ इस सरफेस के वजह से, इस सरफेस के वजह से, क्योंकि इसका जो एरिया है ना इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही डायरेक्शन में, थीटा 0 है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू ये। उसी तरह से बैक साइड में जो चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, इस पार्ट का जो एरिया भी इस डायरेक्शन में ही है। तो जो निब है बेटा, पेन को आप सीधा पूरा वर्टिकल रखो आपके अपने पेपर पे,
तो पिन का जो एरिया कहां पर है, नीचे है कि ऊपर है? पेन है हाथ में आप लोग के? हाँ, पेन है हाथ में? ऐसा हाँ, तो सर उसको है पूरा वर्टिकली रखो, पूरा वर्टिकल रखो। और निप का जो एरिया है कौन से डायरेक्शन में पॉइंटेड है, नीचे की ऊपर? नीचे। नीचे है ना, तो उसका एरिया, निप का एरिया कौन सी डायरेक्शन में, नीचे है ना, है कि नहीं? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही डायरेक्शन में, एरिया भी वही डायरेक्शन में, तो एंगल दोनों के बीच में कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, E इंटू ए। क्लियर है? तो यस इस सर। कर्व सरफेस की वजह से E है, इस कर्व सरफेस की वजह से E है, और इसके वजह से 0 है। तो आ गया मेरे पास, देखो। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो, कंसीडर ए प्लेन शीट ऑफ ए चार्ज विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया हम लोग सिग्मा बोलते हैं। कंसीडर ए पॉइंट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए शीट, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस व्हिच इज योर सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑन ए कर्व सरफेस E बार एंड A बार आर परपेंडिकुलर। सो फ्लक्स उसका कितना हो जाएगा, 0 कर्व सरफेस के लिए। सर्कुलर फेसेस के लिए E एंड E के बीच आर पैरेलल, तो एंगल बिटवीन देम 0। तो E into A plus E into A is equals to charge enclosed. चार्ज कितना enclosed है वहां पर, Q. So it is E into A is nothing but 2 times of EA, that is equals to Q by epsilon or naught. तो सिग्मा हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर रहे थे, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q by A। तो Q कैसे लिख सकते हो, Q is equals to सिग्मा into एरिया लिख सकते हो बेसिकली। तो 2 into E is equals to, Q की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, इस Q की जगह मैं सिग्मा into A लिख रहा हूं। So sigma into A divided by epsilon. ये और ये gets cancelled. So 2E bar is equals to sigma by epsilon naught. So electric field का जो फॉर्मूला आया, sigma by 2 times of epsilon naught is the answer. So electric field due to a sheet का जो फॉर्मूला है वो कितना बना बेटा, E bar is equals to sigma by 2 times of epsilon naught. And electric field is independent of distance from the sheet. क्या ये R पे डिपेंड कर रहा है क्या, कहीं पर भी R आया इसमें, R के वाली कुछ भी नहीं आया। तो electric field is depending only on the surface charge density. This is a total constant. अगर सिग्मा वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू भी बढ़ जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो शीट का फॉर्मूला है क्या आ रहा है अपने पास, E is equals to sigma by 2 times of your epsilon naught। क्लियर है सभी को? तो 3 फॉर्मूले आए अभी आप लोग को, पॉइंट चार्ज के लिए एक फॉर्मूला आया, लीनियर चार्ज के लिए एक फॉर्मूला आया, और शीट के लिए एक फॉर्मूला आया। तो फॉर ए शीट व्हाट इज द फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड E bar is equals to sigma by 2 times of epsilon naught। Sigma is known as of your surface charge density, and electric field is independent of your sheet. It is independent of your sheet part of relation. Clear है सभी को? यहाँ तक के लिए आज काफी है, बाकी का हम लोग कल करते हैं। इसको एक बार आराम से फिर एक बार आप लोग लिखो, कुछ पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ठीक है, इसकी भी मैं स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोग अपने खुद के नोट्स लिखो एक बार और पढ़ने की कोशिश करो। अगर कुछ पार्ट समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। बस है ना? यस सर। जी सर। कुछ डाउट्स है क्या? गुलशन मोहम्मद, मुस्तफा खान, रजा, अदनान अली, जरा अपने वीडियोस तो ऑन करो आप लोग। अब्दुल मुकीद, अदनान अली, डरेन राजा, गुलशन महमूद। चलो, क्लियर है सभी को? जी सर। क्लोज कर यस दूं? सर। चलो, बाय बेटा। थैंक यू बाय सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए चलो।